Good morning, students. Welcome back to today's class. We have been learning from the chapter 2 polynomials, and in the previous class I explained about 5 identities. One is a plus b whole square identity, second a minus b whole square, third a plus b into a minus b, fourth one x plus a into x plus b, and fifth one which we have learned in class 9th. First 4 are from class 8th and the fifth one was from the class 9th, that was x plus y plus z whole square. That means sum of 3 variables and its square. Now today we are going to focus on the new identity, that is identity number 6 and identity number 7. They both are almost similar. Simple sign is different, plus and minus are different, but almost it is same. Identity number 6 is x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. First I will explain x plus y whole cube का expansion यही क्यों आता है, whether it is true or not. First we will see the proof and then we will solve the question. And same with identity number 7, x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. Whether it is correct or not, that also we will verify, and then we will solve the example 22 and then example number 24. So these are the topics that we are going to focus today. So I want you to pay full attention while watching video also. Fully concentrate on the video and follow each of my instruction and make notes also. Okay, so let us begin this one. Identity number 6, that is x plus y whole cube is equal to identity 6 that is x plus y whole cube. So what does it mean by x plus y whole cube? X plus y is to be multiplied by itself 3 times. So इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x plus y whole cube is equal to, can we write it as x plus y into x plus y whole square, because its power is 1, its power is 2, both bases are same and powers will get added, so x cube आ जाएगा. So now x plus y whole cube into x plus y whole square का आइडेंटिटी तो पता ही हमें, a plus b whole square आइडेंटिटी, इट इज x स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab. आप चाहे तो 2xy को पहले भी लिख सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस. सो इज 2xy. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू विथ दीज 3 टर्म्स, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x into 2xy 2 into x into x स्क्वायर into y. x से इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है. अब y के साथ y into x स्क्वायर वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर y प्लस y into y स्क्वायर, it is power 1, it is power 2, so y into y square is y power 3 plus y into 2xy 2 into x into y into y is y square. So y के साथ तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है. यू कैन सी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विल कम. यहाँ पे 2 टर्म्स इंटू 3 टर्म्स, 2 3 6 टर्म्स, प्रोडक्ट में 6 टर्म्स आ जाएंगे. अब सबको ऑर्डर में लिखो. एक्स क्यूब, क्यूब टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, एक्स क्यूब ये हो गया, देन वाई क्यूब, राइट. इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव 2x स्क्वायर वाई. एक्स वाई ये 2 जो है क्वांटिटी है कि एक्स स्क्वायर वाइज कितने हैं. 2 x स्क्वायर वाई आर देयर. यहाँ एक और है x स्क्वायर वाई. सो टोटल हो गए हैं 3x स्क्वायर वाई. ये दोनों हो गया प्लस आई थिंक वन मोर इज मिसिंग. यस, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1, टोटल 3x वाई स्क्वायर. इसके बाद हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है. इसमें x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पर x कॉमन लिया. इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y ऑल्सो इज टेकन कॉमन. नाउ इसमें 3xy चले जाने के बाद y पूरा गया, 3 पूरा गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो 1x इज लेफ्ट प्लस इसमें से 3xy, y स्क्वायर में से 1y गया, 1y लेफ्ट. सो दिस इज व्हाट द एक्सपेंशन इज x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू, यही आइडेंटिटी. नाउ इट्स प्रूफ. जो आइडेंटिटी है हमने उसको प्रूव कर दिया.
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. सो दैट इज आइडेंटिटी नंबर 6. सेम आपको x माइनस वाई के साथ भी करना है. x माइनस वाई में क्या क्या होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, सिर्फ यहाँ पे एक माइनस का फर्क. फिर उसके बाद आप एक एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट सेम विद डिफरेंट साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22, बिकॉज ये ईजी रहेगा. आइडेंटिटी के साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो दैट इज 3a प्लस 4b होल क्यूब. इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है. क्यूब है ना, सो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी. आइडेंटिटीज को लर्न करने का फ़ायदा यही है कि हम जनरल मेथड को यूज़ ना करते हुए शॉर्टकट मेथड यानी कि आइडेंटिटी मेथड यूज़ करके सिंप्लीफाई कर देते हैं. जनरल मेथड में यदि हमें करना है तो कैसा करना पड़ता है, वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस, है ना. पहले आप 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b 3 टाइम्स इस तरह मल्टीप्लाई करके ये लेंथी हो जाएगा. इतना लेंथी आंसर को कम करने के लिए हम आइडेंटिटी को शॉर्टकट में यूज़ करते हैं. इट इज़ लाइक एक्स प्लस वाई होल क्यूब. ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसका एक्सपेंशन भी जो है आइडेंटिटी के हिसाब से ही होगा. एक्स प्लस वाई होल क्यूब का जो एक्सपेंशन है वैसा ही यहाँ पर भी आएगा. सो 3a प्लस 4b होल क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स प्लेस में है, 4b वाई प्लेस में है. सो एक्स प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन एक्स क्यूब, तो ये एक्स प्लेस में 3a है, सो 3a का क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई प्लेस में 4b है, सो 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लेस में, इस क्वेश्चन के अनुसार एक्स प्लेस में यहाँ पे 3a है, सो 3a इंटू वाई प्लेस में 4b ब्रैकेट एक्स प्लेस में 3a प्लस वाई प्लेस में 4b. ओके, हमने इस 3a प्लस 4b को आइडेंटिटी के हिसाब से एक्सपेंड किया. ये एक स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप में 3 क्यूब a क्यूब प्लस 4 क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9, 9 4 36 ab, यहाँ पे 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b is equal to 3 cube means 3 into 3 into 3, 3 multiplied 3 times, it is 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27. 27 a cube plus 4 3s are 4 into 4 into 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64, it is 64 b cube plus, अब इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं 36 into 3, 36 into 3, then a into a square b plus 36 into 4 a into b into b, so a into b into b is b square. अब एक और स्टेप बचा है 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 36 into 3, 3 3s are 9, sorry 3 6 are 18, 3 3s are 9 plus 1 10, a square b plus 36, 4 6 are 24, 4 3s are 12 plus 2 14, it is a b square. So this is the answer for 3a plus 4b whole cube. So we have used identity to find out the answer of, यदि हम 3 क्यूब फाइंड करना है, सपोज 125 का क्यूब फाइंड करना है, हाउ डू वी डू 125 इंटू 125 इंटू 125, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे भी वैसे एक्चुअली यदि हमें आइडेंटिटीज नहीं पता होता तो हमें 3a प्लस 4b को इस तरह 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन जब हमें आइडेंटिटी पता है तो हम शॉर्टकट में इस तरह सॉल्व कर देते हैं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग आइडेंटिटी. सो दिस वाज अबाउट x plus y whole cube identity and example. Now let us focus on the another identity, that is identity number 6, which is x minus y whole cube. This is also almost same. Identity number 7, that is x minus y whole cube
is equal to x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. It is completely same, just with difference, with माइनस में थोड़ा सा चेंजेस है. x के अलावा बाकी सब, x क्यूब के अलावा बाकी सभी आइटम नंबर्स नेगेटिव्स होंगे. अब इसका प्रूफ भी देखते हैं हम. x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू, कैन वी राइट इट लाइक दिस, x माइनस वाई इंटू इसका पावर 1 x माइनस वाई पावर 2, दोनों का पावर ऐड करने पर एज इट इज यही आएगा. इस तरह क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है x माइनस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन. सो x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी का एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी एक्सपेंशन. नेक्स्ट अब इन दोनों को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसके बाद x इंटू माइनस 2xy इज 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, उसके बाद x इंटू प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर. उसके बाद माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, सो इट इज एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई. इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर, सो इट इज 2x वाई स्क्वायर. उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब. नाउ वी जस्ट रीअरेंज देम, एक्स क्यूब और लास्ट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वाई क्यूब. उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई, सो दिस इज 1x स्क्वायर वाई एंड दिस इज 2x स्क्वायर वाई, सो टोटल 3x स्क्वायर वाई. उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर टर्म्स यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 हैं, तो टोटल 3 हो गए हैं, 3xy square. Now we take something common here, y cube. अब इन दोनों में 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है. सो इसमें x कॉमन लिया, y भी कॉमन लिया, 3 भी कॉमन लिया, बचा कितना x. और यहाँ पे 3xy तीनों को कॉमन लिया, बचा कितना y. लेकिन अंदर साइन कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने ये टर्म पॉजिटिव आने के लिए यहाँ पर हमें माइनस लिखना पड़ेगा. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर x माइनस वाई होल क्यूब. सो प्रूव हो गया. हमें जो सिर्फ बाय हार्ट नहीं करना है, हमें मालूम भी होना चाहिए कि x माइनस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन यही क्यों आता है. आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं या ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी. क्वेश्चन जब देते हैं फैक्टराइज करने के लिए, वो इस फॉर्म में देते हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा. नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल नंबर 22 का सेकंड वन, दैट इज 5p माइनस 3q होल क्यूब. ऊपर क्यूब दिखाई देता है तो हमें तुरंत आइडेंटिटी याद आना चाहिए, राइट. सो नाउ वी विल एक्सपैंड इट अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी. इट इज x माइनस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी के हिसाब से है, तो हम लिखते हैं 5p माइनस 3q होल क्यूब इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द एक्सपेंशन x माइनस वाई होल क्यूब का x क्यूब. सो x प्लेस में हमारे पास है 5p, तो 5p का होल क्यूब माइनस y क्यूब, y प्लेस में 3q है, सो 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लेस में 5p इंटू y प्लेस में 3q इंटू एक्स प्लेस में 5p माइनस y प्लेस में 3q. सो वी हैव एक्सपैंडेड अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज एक्सपेंशन. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 क्यूब p क्यूब माइनस 3 क्यूब q क्यूब माइनस 3 5 जार 15, 15 3 जार 45, p इंटू q p क्यूब माइनस 5p माइनस 3q is equal to 5 cube is 125, p cube minus 3 cube is 27, q cube minus 45 into p cube into 5p, minus into minus plus 45 into
45pq into 3q is equal to 125pq minus 27q minus 45 into 5, 545 are 5 4s are 540s are 200, 5 5s are 25, so it is 225 p into p square q, उसके बाद प्लस 45 into 3, 345 are 340s are 120, 3 5s are 15, so it is 135 p q square. So 5p minus 3q होल क्यूब का आंसर है. सो हमें इस आइडेंटिटी को बेस करके दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं. कैसे? एक जो है क्वेश्चन इस तरह इस फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी के फॉर्म में x माइनस वाई सिंपल फॉर्म में दे के एक्सपैंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा. रिवर्स एक्सपैंडेड फॉर्म में दे के सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आएगा. एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि फैक्टराइज, यानी कि ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करो, इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स के रूप में लिखो. सो ये फैक्टर्स इसको हम फैक्टराइजेशन हुआ करके कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 3 टाइम्स लिखते हैं, तो 3 फैक्टर्स हो गए हैं. राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द आइडेंटिटी नंबर 7. अब मैंने जैसे कहा था कि रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन दिया जाता है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 24, दैट इज फैक्टराइज. This is example number 24. Factorize 8x cube plus 27y cube plus 36x square y plus 54y square x. अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा आइडेंटिटी लगाना है, कौन सा आइडेंटिटी हमें यूज़ करना है. अब देखो अपने पास अभी तक हमने 6 आइडेंटिटीज़ को लर्न किया है. 6 आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ तो यहाँ पे लागू होंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ जो है सब स्क्वायर वाले हैं. पहला, दूसरा और तीसरा चौथा भी चारों स्क्वायर आइडेंटिटीज है. बट दिस इज हैविंग क्यूब, तो फर्स्ट 4 और 5th वाला भी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5th वाला भी स्क्वायर वाला है. तो ये जो आइडेंटिटी है क्यूब वाला आइडेंटिटी है. क्यूब वाला आइडेंटिटी इसमें अभी तक कितने लर्न किए हमने? 2. ये a प्लस बी एक्स प्लस वाई होल क्यूब का और x माइनस वाई का. इसके अंदर हमें कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये प्लस वाला ही होगा. एक्स क्यूब वाला. दूसरा क्यूब वेरिएबल जो क्यूब वाला वेरिएबल जो दिखाई देता है उसके साथ लिखा हुआ नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पे 8, बताइए कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है? यस, विच नंबर? दिस इज 2 क्यूब एंड दिस इज 3 क्यूब. सो नाउ वी विल राइट इट 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54y स्क्वायर x इज इक्वल टू 8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब x क्यूब प्लस पहला स्टेप में हम परफेक्ट स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे 3 क्यूब y क्यूब. 27 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 क्यूब कर दिया प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54y स्क्वायर x. जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये x प्लस वाई होल क्यूब का आइडेंटिटी एक्सपेंशन है, तो हमें उसी फॉर्म में लेकर आना है. जैसे x प्लस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या देखा इस क्वेश्चन में हमने? x प्लस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी का एक्सपेंशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. चाहे आप इस फॉर्म में लेकर आ सकते हो या इस फॉर्म के अंदर भी लेके आ सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें x कौन सा है, y कौन सा है. राइट. सो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2 क्यूब x क्यूब, दोनों का पावर सेम है तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब, दोनों का पावर सेम. उसके बाद 36, इसको हम अभी क्या करेंगे, ये 3 इंटू होना चाहिए ना. एक्सपेंशन में क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई. हमें x और y मालूम हो गया, x प्लेस में क्या आया है, y प्लेस में क्या आना है, ये दोनों मालूम हो गया है. अब यहाँ पे फॉर्म जो लिखेंगे फॉर्मेट में 3 इंटू एक्स वाई, 3 इंटू एक्स वाई, सॉरी इसके अंदर 3 इंटू एक्स वाई या 3x स्क्वायर वाई के फॉर्म में लिखना है हमें. तो इसको हम लिखेंगे कि 36 को 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी. अब 36 में से हमने
36, 3 1s are 3 12s. सो 3 को बाहर प्रोडक्ट फॉर्म में सेपरेट किया तो बचेगा कितना, 3 12s आर 3 12 आर 3x स्क्वायर 3 इंटू 12 इंटू सॉरी 3 इंटू एक्स प्लेस में अपने पास है 2x, यहाँ पर x 3 इंटू अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज एक्सपेंशन 3 इंटू एक्स स्क्वायर. तो x का वैल्यू कितना है लिया हमने यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लेस में 2x है, सो 2x का स्क्वायर इंटू वाई प्लेस में 3y. आप एज टीज उसको लिख सकते हो. ये इक्वल आएगा कि नहीं देखते हैं. देखो 3 इंटू 2x होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 3y. सो 3 इंटू 3 9, 2 स्क्वायर इज 4, सो 9 4 जार 36 आ गया. सो इस 36 एक्स स्क्वायर वाई को हमने क्या किया, इस तरह हमने स्प्लिट किया है प्रोडक्ट फॉर्म में ताकि ये 3x स्क्वायर वाई फॉर्मेट में आ जाए. प्लस 54 को भी 3 इंटू 54 को डिवाइड करो 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 3 1s आर 3 3 8s आर 24, राइट. अब 3 तो बाहर कर दिया, कितना बचा 18 के अंदर ये दोनों आ जाना चाहिए. 3 इंटू, या आप डायरेक्टली लिख दो 3 इंटू आइडेंटिटी का एक्सपेंशन 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर. 3 इंटू एक्स प्लेस में क्या आना चाहिए 2x क्यूब 2x इंटू वाई स्क्वायर, वाई प्लेस में 3y और उसका स्क्वायर. ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा. आप एक और एक्सरसाइज एग्जाम्पल को सॉल्व करना, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. अदरवाइज यू सी इट वंस अगेन. आई एम जस्ट स्ट्राइकिंग इट ऑफ एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. 2x ये तो समझ आ गया आपको, 3y का भी समझ आ गया. अब इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई के फॉर्म में लिखना है इसको, इस टर्म को 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई के फॉर्म में. सो 3 तो आ गया. अब x प्लेस में y प्लेस में क्या क्या आएंगे 2x, ये लिख दो, और y प्लेस में 3x स्क्वायर y प्लेस में 3y प्लस 3 इंटू एक्स प्लेस में 2x इंटू वाई प्लेस में 3y और उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी के साथ चेक करो. आइडेंटिटी में एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई प्लेस वाला वैल्यू क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लेस वाला वैल्यू स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लेस वैल्यू इंटू वाई स्क्वायर, वाई प्लेस में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर. सो वी हैव एक्सपैंडेड इट लाइक दैट. नाउ वी कैन से दैट इट इज according to the identity a cube plus x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square. So it is x plus y, x place वाला वैल्यू प्लस y place वाला वैल्यू होल क्यूब. तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह फैक्टराइज किया है. ओके, यू मे बी स्टिल फीलिंग कंफ्यूजिंग, वॉच इट वंस अगेन and go through the example, and after finishing this video, write back to me whether you have understood it or not. Otherwise, if not understood, I'll upload one more video only for this example, and tomorrow we'll focus on the remaining identities, 2 more identities we have. So that's it for today, children. Hope you will do it better, and feel free to write the feedback. Thank you and good day.